Hi dear students. Let's see this question that came in KVPY 2018 essay part 1 physics paper. The question is again a regular 10 seconds question. This is based on the definition of electron volts. If you know how we define electron volts, similarly we can define any any quantity. Now here we have to find we have to find the connect or the relation between alpha volt and electron volt. Okay. Also we have been given the mass of proton is 2000 times that of an electron. This data is just to confuse us. KVPY has very intelligently given this data so as to confuse the students. This will not be required. Okay. Now basically what is electron volt? Electron volt is a kinetic energy gained by electron. Basically this is a unit of energy. First we should realize this is the kinetic energy gained by an electron when it accelerates through a potential of 1 volt. Okay, so basically using the logic of energy conservation, when a charge of 1 electron accelerates through a potential difference of 1 volt, then can we say that it will acquire the energy of basically one if you want to write in joules, so charge on the electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 into 1 volt. Okay, so this is the kinetic energy in joules. So let me write this in joules. So this much joules will be the kinetic energy. This is nothing but 1 electron volt. Okay. Now similarly, what is 1 alpha volt? 1 alpha volt will be the kinetic energy acquired by an alpha particle when it accelerates through 1 volt, right? So now what is the charge on alpha particle? Charge on alpha particle is twice that of electron. Okay, magnitude wise we can say that twice that of electron. So 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 into 1 volt. So basically this much energy will be in joules. So this will be 1 alpha volt. This will be 1 alpha volt, right? So this is the charge on alpha particle, and when it accelerates through 1 volt, so it will have the kinetic energy in joules, right? So you can see that 1 alpha volt is nothing but twice that of electron volt. Okay, basically we don't need to do this much. If you understand the concept, अल्फा वोल्ट का क्या मतलब हुआ कि अल्फा पार्टिकल को हमने 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कराया है, तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी. इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन को वी हैव एक्सलेटेड थ्रू 1 वोल्ट, सो हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इट इज गोइंग टू गेट. नाउ दोनों को हम 1 वोल्ट से एक्सलेट करा रहे हैं, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इट इज गोइंग टू गेन. ओके, बोथ ऑफ देम हमें ये देखना है कि दोनों में काइनेटिक एनर्जी का गेन कितना आएगा. ठीक है, तो बोथ ऑफ दोनों को हम 1 वोल्ट से एक्सलेट करा रहे हैं, राइट. एक के पास चार्ज ट्वाइस है दूसरे का, तो ऑफ कोर्स वी कैन से दैट जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज आएगा वो दो एक में मतलब अल्फा वाले में, अल्फा वोल्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ट्वाइस आएगा, राइट. तो यहाँ से आंसर ट्वाइस बोल सकते हैं. सम ऑफ यू माइट थिंक कि नेगेटिव क्यों नहीं आया, मतलब अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है. नाउ द आइडिया इज दैट वी विल एक्सेलरेट बोथ. दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन को भी अपन 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहे हैं. द की वर्ड इज एक्सेलरेट. सिमिलरली अल्फा पार्टिकल को भी हम एक्सेलरेट कर रहे हैं. दैट मीन्स सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो अल्फा पार्टिकल को एक्सलेट करने के लिए वी विल टेक दी अल्फा पार्टिकल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करने के लिए वी विल टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. दैट मीन्स कि हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साइन से मतलब नहीं है. वी हैव टू एक्सेलरेट बोथ इलेक्ट्रॉन एंड एज वेल एज अल्फा पार्टिकल थ्रू 1 वोल्ट. दिस इज द आइडिया. So that is how we define electron volt and alpha volt. बेसिकली तुम कोई भी चीज डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से. जैसे प्रोटॉन वोल्ट अगर डिफाइन करना है, तो प्रोटॉन वोल्ट भी वही हो जाएगा. प्रोटॉन वोल्ट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज इज सेम. ठीक है. मतलब अगर उसकी वैल्यू अपन जूल्स में निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो मैग्नीट्यूड आएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू आएगी वो इतनी है, वो ये है ना, इतनी ही वैल्यू प्रोटॉन वोल्ट की भी आने वाली है, राइट. तो प्रोटॉन वोल्ट भी जूल्स में यही आएगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी जूल्स में वही आएगा. ठीक है, अगर कोई ऐसा पार्टिकल जिस पे 3 टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे मान लो उसको मैंने बोल दिया कुछ लेट्स से कुछ पार्टिकल बोल देते हैं, लेट्स से एल पार्टिकल. ठीक है, तो एल वोल्ट्स का क्या मतलब हो जाएगा, 3 टाइम्स दिस. ठीक है, अगर उस पे थ्राइस द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो फिर उस पे एल वोल्ट का क्या मतलब हो जाएगा, 3 टाइम्स दिस. एज सिंपल एज दैट. तो आई होप यू वुड हैव गॉटन द आइडिया. थैंक यू.